So today's topic of discussion is agriculture, that is chapter 4, that is included in CBSE board exam. Clear? So you are aware of many agricultural activities in earlier classes, right? Here we will study its aspects, okay? And its uses and various other things. Clear? You have seen that from early time people left nomadic life and they started living settled life. Clear? It was because they could understand how to raise crops. Clear? They had studied, they had understood the type of germination of seeds, how they germinate, and finally they had recognized various varieties which are edible, जिसे हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है? Such crops they were sown after people had left nomadic life. Clear? Here we will try to understand agricultural products like tea, coffee, spices, how they are produced, how they are exported. Clear? And we will try to understand the types of farming first. Okay? Types of farming. It is very important topic because from early period we have seen these types of farming. It has some advantage as well as disadvantage. ठीक है? तो ये जो हमारा फार्मिंग का टाइप्स है, ठीक है, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है? इट इज व्हाट मींस फार्मिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? योर फार्मिंग is an economic activity. Why? Because we also produce cash crops. ठीक है? That gives us cash. ठीक है? Means non-agricultural means you can say non-edible items. ठीक है? जिसे हम लोग खाते नहीं हैं. जैसे नॉन एडिबल्स में कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, रबर हो गए, राइट, एंड सो ऑन, मेनी थिंग्स. ठीक है? दे आर नॉन एडिबल. दैट्स व्हाई दे गिव्स अस कैश. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड दे आर यूज्ड बाय अस एज अ लाइक क्लॉथ मटेरियल. ठीक है? फॉर मेकिंग स्टोर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है? वी प्रोड्यूस सच क्रॉप्स. ठीक है? So here the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices they are used in farming. ठीक है? And you can say farming varies from different places to different. ठीक है? At different places they have different types of farming. अगर आप hills में जाते हैं you will have terrace farming, है कि नहीं? फिर अगर आप plain area में हैं you are making field, you have cultivable land. ठीक है? You have vast land and you are producing your crops. Clear? It has special type of soil, that is alluvial soil. At some places it has black soil. At some places it has red soil, laterite soil, what we have studied in previous chapter. Clear? So the very starting type of farming was primitive subsistence farming. ठीक है? Primitive subsistence farming, right? This type of farming it was done at primitive stage. ठीक है? When we had started learning how to produce crops. ठीक है? उस समय की फार्मिंग थी. इसको जो है क्या कहते हैं, इट इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. आज भी इंडिया के बहुत सारे एरियाज में ये हमारे प्रैक्टिस होती है. ठीक है? सो इट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है? इसमें क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड आर क्लियर्ड. ठीक है? व्हाट वी डज, वी क्लियर स्मॉल पैचेस of land. ठीक है? Of land using primitive tools. Means अभी हमारे पास डेवलप्ड टूल्स नहीं है. We had used primitive tools. ठीक है? Wooden tools, है ना? Hoe
ऐसे करके बहुत सारे जो है क्या कहते हैं आते हैं लेबलर्स वगैरह जो वुड के बने होते हैं, प्लाउ वगैरह, दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड वी हैड यूज एनिमल मसल, ठीक है, मीन्स वी यूज्ड बुलक्स, ठीक है, इससे हमने फार्मिंग की उस समय तक, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, वी वर डिपेंड ऑन मानसून ओनली, ठीक है, दे वर डिपेंड ऑन मानसून, ठीक है, ओनली मानसून पे ही डिपेंड रहते थे, कोई बाकी इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, प्राइमेटिव फार्मिंग, क्लियर। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड मींस दे वर आल्सो, मींस इट इज इसको एक और नाम दिया गया स्लैश एंड बर्न, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, मीन्स क्या करते थे, दे हैड टू क्लियर अ पार्टिकुलर पैच, ठीक है, पीस ऑफ एरिया, ठीक है, वेयर देयर वाज फॉरेस्ट, फाइनली दे हैड रेज्ड देयर क्रॉप्स एंड व्हेन क्रॉप्स वर ripe they had harvested it but not fully, they had such as this is wheat crop and they are its grains, ठीक है, so from this portion they had to cut, clear, and remaining portion when they are cut they have to be set on fire, ठीक है, इनको आग लगा देते थे, right, so they had to burn, right, and then left that area, again they cleared another piece of land, ठीक है, वहां भी उन्होंने एक साथ क्रॉप रेस किया, ठीक है, फिर उसको कट करके बर्न कर दिया, तो इन दिस मैनर मीन्स दे हैड डिप्लीटेड फॉरेस्ट, इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे फॉरेस्ट डिप्लीट किया, ठीक है, सो दस दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज, बिकॉज दे शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, सो इट बिकेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, बिकॉज दे हैड शिफ्टेड आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 season, दैट्स व्हाई दिस कल्टीवेशन बिकेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस इन्होंने यूज किया, लैंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इट वाज लैंड इट रिमेन्ड प्रोडक्टिव फॉर ओनली 1 crop ईयर, उसके बाद यूजलेस हो जाता था उनके लिए, ठीक है, फिर वो दूसरे एरिया में चले जाते थे, अंडरस्टूड, तो ये था, तो ऐसे ही बहुत सारे आप जो है इस टाइप के फार्मिंग को आप बता सकते हैं। इसका एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको कहते हैं जूमिंग, ठीक है, ये जूमिंग ZEAMI, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है ना, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, तो आपको पता ही है असम वगैरह ये सब जितने ईस्ट में बहुत सारी जगह है, सब नाम लिख रहा हूँ, यस, तो जूमिंग में जो है हर जगह पे इसका अलग अलग नाम है, ठीक है, यू कैन स्टडी देम योरसेल्फ, है कि नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इंटेंसिव, अच्छा इसमें एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या थी जूमिंग एग्रीकल्चर में, देयर वाज अ चैलेंज फॉर ब्रिटिश इकोनॉमी टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एंड जूमिंग एग्रीकल्चर दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज प्रीवलेंट, एट दैट टाइम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन दे वर सफरिंग अ प्रॉब्लम ऑफ टैक्स रेवेन्यू, लैंड कलेक्ट मतलब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने इस एरिया में एक साल खेती किया, ठीक है, जैसे एक साल बीता दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह, तो वहाँ के जो लैंड इंस्पेक्टर दे हैड टू कम एंड आस्क व्हिच लैंड दिस इट वाज, पीपल सेज इट्स नॉट माइन, तब किससे जो है लैंड रेवेन्यू जो है वसूलेंगे, वो तो चले गए दूसरी जगह, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था कि किसी के नाम से लैंड फिक्स नहीं होता था, है ना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जूमिंग कल्टीवेशन का। बाद में इसीलिए जो है लैंड बिल पास हुआ, ठीक है, एंड पीपल वर अलॉटेड पीस ऑफ लैंड, तब लोगों के नाम से ज़मीनें की गई। पहले क्या होता था, किसी के नाम से कोई ज़मीन नहीं होती थी, दोज पीपल हु हैव मसल पावर, ठीक है, दे हैड टू ऑक्यूपाई लार्ज एरिया, क्लियर,
and remaining person they had to occupy small holdings who were who had less power. Clear? तो ये चीज था। तो इस तरीके से आप लोग जो है रिंझा, एक इसमें देखो एक बच्ची है, कोई रिंझा है, ठीक है, उसकी फैमिली की स्टोरी है इसमें, ठीक है, और इसमें जो है असम में है, ठीक है, वहां पर इसने देखा, ठीक है, रिंझा लिव्ड इन हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है, इट इज आउटस्कर्ट ऑफ दिखू इन असम। एक लड़की है रिंझा, ठीक है, वो देखती है कि उसके पेरेंट्स हर बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो सी इज सरप्राइज दैट व्हाई दे आर डूइंग सो। पता लगा एक ईयर में उस एरिया में जो उन्होंने किया, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसके लिए क्या है कि इन सारे लोगों को जो है जो इस फार्मिंग में एंगेज्ड है, ठीक है, दे आर थिंकिंग दैट व्हाई वी आर चेंजिंग दीज प्लेसेस, है कि नहीं। एक जगह पे सेट हो गए थे, फिर अब दूसरी जगह चलो, फिर तीसरी जगह चलो, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ड्रॉबैक्स। क्लियर? अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग देखते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? सो दिस इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अनदर वन। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, subsistence farming. Clear? This is another type of farming. Clear? So in this case, you have got population pressure बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, it is labor intensive farming, ठीक है, means when farming was done using labor, ठीक है, ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन पीपल हैड टू डू देयर ओन मसल पावर, दे हैड टू यूज, ठीक है। अब एनिमल पे डिपेंड नहीं रहने लगे, पता लगा एक एक घर में 15-15 लोग हो गए, 20-20 लोग हो गए, ठीक है, तो वो बाई हैंड खुद ही सारा कल्टीवेशन कर लेते थे, ठीक है, मीन्स इट वाज डन बाय ऑल फैमिली मेंबर्स। क्लियर? बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, मीन्स हियर व्हाट हैपेंड, they had to give high doses of biochemical input and irrigations are used, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या करते हैं, हाई डोज यूज करना होता है बायोकेमिकल्स का, ठीक है, कहीं कहीं पे सॉइल की फर्टिलिटी इट रिड्यूसेस, सो दे हैव टू अप्लाई हाई डोजेज ऑफ मैन्योर, ठीक है, एंड इनपुट, ठीक है, ताकि जो है अच्छी फसल हो, ठीक है। सो the right of inheritance including the division of land among successive families, ठीक है, लार्ज फैमिली हो जाने की वजह से अब क्या होगा, देयर इज डिवीजन ऑफ फैमिली, ठीक है, और बहुत सारे क्या कहते हैं उनको राइट टू हेरिटेज मिला हुआ था, ठीक है, जो सक्सेसिव जनरेशन है वो लैंड जो है अपने आप ट्रांसफर हो जाता था दूसरे के नाम से, ठीक है, और इस तरीके से फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड, ठीक है। अब उनका पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है कि नहीं, भले ही अब हाई डोजेज ऑफ इनपुट चाहिए, लेकिन अब उनका परमानेंट एरिया है कि नहीं, अब वो लोग क्या करेंगे, दे हैव टू डू ऑल एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ, उन्हें दूसरी जगह पैच खोजना नहीं पड़ा, जनरेशन टू जनरेशन इट वाज ट्रांसफर्ड, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, बिकॉज दिस पैच वर्क्स, दिस फील्ड वर्क, these land they were transferred from one generation to another generation. Clear? So you can say they had absence of alternative source of livelihood, there is enormous pressure on agricultural land. Intensive farming में क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया, ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, अब प्रोडक्शन डिक्रीज हो चुका है। पहले हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे तो हमें फर्टाइल लैंड मिल जाता था, ह्यूमस होता था, खूब बढ़िया ग्रो होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, दे हैड स्टार्टेड इंटेंसिव फार्मिंग, दे हैड स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ, ठीक है, अब वही लैंड जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने लगा, इसलिए अब उनके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। अब ये सारे प्रेशर को ख़त्म करने के लिए
दे हैड स्टार्टेड कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है, दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। जैसे ब्रिटिश लोगों ने कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो कराना शुरू कर दिया था, जैसे जूट, कॉटन, ठीक है, इंडिगो, है ना, फिर इसके बाद रबर, है ना, फिर इसके बाद और ऐसे करके हॉर्टिकल्चर्स, जैसे फ्रूट्स, कॉफ़ी, ठीक है, ये सब हमारे कॉमर्शियल क्रॉप में आते हैं, बिकॉज दे आर नॉन एडिबल। इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं खाते हैं, इसको हम एज अ फॉडर, एज अ फ्रूट तो खैर एडिबल हो गया, लेकिन अदर कैश क्रॉप जैसे कॉटन वगैरह है, रबर है, जूट है, दे आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस फार्मिंग हैज बिकम कॉमर्शियल फार्मिंग, इजंट इट। सो व्हाट हैपेंस इन हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं दे आर सबसिस्टेंस इन डिफरेंट एरिया। सपोज इन पंजाब एंड हरियाणा they have rich stock of wheat, they have grown large quantity of wheat, but in another area it is scarce, ठीक है। अब राजस्थान में वहाँ का व्हीट ग्रो होगा, वहाँ तो स्कार्सिटी आ गई, है कि नहीं। पता लगा असम में देयर आर टी प्लांटेशन, बट दिस टी प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल इन यूपी, तो वहाँ पे जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप है, अबंडेंट है, तो यहाँ पे सबसिस्टेंस हो गया, स्कार्सिटी हो गई, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहाँ का, हमारी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट ब्रॉट सच कंडीशन, ठीक है, कि कुछ क्रॉप कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम, राइट, लेकिन हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको करना है। अब चाय तो हर घर में पिया जाता है कि नहीं, बट इट इज़ ग्रोन इन असम ओनली, राइट। तो इसका मतलब अगर असम कह दे कि वी विल नॉट सप्लाई दिस टी लीव्स, तब तो भाई ये तो एक तरह से गलत है, इजीली, मतलब एक तरीके से ये मतलब जो है दे आर नॉट सपोर्टिंग पीपल, है कि नहीं। सो मीन्स ये नहीं है, ये हमारे क्या कहते हैं, ये नेशनल लेवल के लिए हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, ताकि उसका फ़ायदा एवरीबडी कैन गेट। केरला में रबर अगर ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि केरला वाले ही रबर यूज़ करेंगे, है ना, इट विल बी सप्लाइड टू इंडस्ट्रियल वर्क, ठीक है। तो ये है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। इसी तरीके से इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, दे आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, इसको प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। व्हाट आर प्लांटेशन क्रॉप्स? वेयर सिमिलर वेराइटीज, सिमिलर स्पेसीज आर ग्रोन इन लार्ज एरिया, है कि नहीं। सपोज बनाना, केले की खेती करते हैं, अभी भूसावल आप चले जाएं मध्य प्रदेश में, ठीक है, इट हैज़ ह्यूज एरिया दैट इज ओनली बनाना ट्रीज यू विल सी, ठीक है। फिर उसके बाद टर्मरिक ट्रीज, टर्मरिक हल्दी, अभी आप इधर चले जाइए वेस्टर्न एरिया में, इधर बिहार की तरफ, वहाँ पूरा दूर तक टर्मरिक ही दिखाई देगा, उसके ही प्लांट्स दिखाई देंगे, है कि नहीं। दे आर प्लांटेशन क्रॉप्स, इसी को प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, एंड दे आर सप्लाइड टू मर्चेंट्स, एंड दीज मर्चेंट्स दे डिस्ट्रीब्यूट all these crops in various markets, ठीक है, and we collect it from shop, है ना। So all these things happen. Similarly you have bamboo plantation in north east, नॉर्थ ईस्ट में आपका बैम्बू प्लांटेशन है। बैम्बू ट्री जो होता है ये क्या होता है पता है, पता लगता है पहले जो है क्या कहते हैं 5-6 साल तक आप बैम्बू ट्री लगा देंगे, 5-6 साल तक नहीं उगेगा, ठीक है, और उसके बाद एक का एक जो है ये राइस करता है, 1 महीने में लंबा हो जाता है, ठीक है। इसकी ये खासियत होती है बैम्बू ट्री की। ऐसे आप लगा देंगे 4-5 साल तक उसमें कुछ नहीं होगा, वैसे पड़ा रहेगा, फिर एकाएक 6 साल के बाद जो है इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, ठीक है, और बहुत रैपिड इसका ग्रोथ होता है, पता नहीं क्या इसका इस स्पेसीज की खासियत है। तो बैम्बू इज यूज्ड एज टिम्बर, है ना, बैम्बू हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में जब हम लोगों का घर वर बनता है उसमें बैम्बू होता है ना। अभी भी आपके रूरल एरिया में चारपाई बनती है बैम्बू से, है कि आज भी उसका यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, जो लोग हमारे मतलब कॉन्क्रीट हाउस जिनके पास नहीं बन पाता है, ठीक है, इट बिकम्स अ सिचुएशन बिकॉज दे हैव लेस इकोनॉमी,
तो कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन टू द स्टेट्स। इधर कर्नाटका भी है, ठीक है। कॉफी जो होता है हमारा नॉर्थ इंडिया, मतलब जो है क्या कहते हैं, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटका में, ठीक है। कॉफी इज आल्सो ग्रोन इन कर्नाटका, ठीक है, राइट। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे देयर आर मेनी प्लांटेशन क्रॉप्स दैट वी फाइंड इन डिफरेंट एरिया। क्लियर? सो हियर यू हैव गॉट अ नेटवर्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स वहाँ डेवलप होता है वेयर देयर इज गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजी, क्योंकि ये सब ऐसे मटेरियल होते हैं, पेरिशेबल मटेरियल, ये खराब होने का डर रहता है, ठीक है। एंड दे हैव टू बी सप्लाइड इन लेस टाइम टू लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन शुड बी बेटर, है ना। जितना तेज ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना जल्दी हम सप्लाई करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे प्लांटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नाउ वी विल डिस्कस क्रॉपिंग पैटर्न, ओके। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है ना। हमारे जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, इट हैज अ पैटर्न, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। So throughout year we have divided our time, ठीक है, full year in 3 क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। उसमें जैसे सीजन के हिसाब से, ठीक है, हमारा 3 क्रॉपिंग सीजन्स आर देयर, ठीक है। व्हाट आर दे? रबी, ठीक है, दे आर क्रॉपिंग सीजन्स, इसी को हम क्रॉपिंग सीजन बोलते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी क्रॉप हैं उनको सबको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। एंड दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन क्लास 8, क्लास 7 आल्सो, है ना, सब चीज़ क्लास में पढ़े होंगे। तो रबी क्रॉप्स आर सोन, ठीक है, विंटर अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप्स कब सो होता है? सोन इन अक्टूबर टू चल रहा है, जिसमें लोग सोई कर रहे हैं रबी क्रॉप की, ठीक है। और इसके बाद और हार्वेस्ट कब होता है? हार्वेस्टेड, यही मेन चीज, यही याद रखना है, हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू, यही टाइम आपको याद रखना है, सोविंग का टाइम, हार्वेस्टिंग का टाइम, और कौन कौन से क्रॉप होते हैं, ठीक है। तो यू नो वेरी सिंपल, व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, बार्ली, पीस, ग्राम एक्सेट्रा, मस्टर्ड भी होता है, ठीक है। अब कितना लिखोगे, बहुत होगा ऐसा, राइट। तो ये आपके बस यही 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा, कोई क्रॉप लिखा रहेगा, पूछेगा कौन से क्रॉपिंग सीजन में है, 4 ऑप्शन रहेंगे, यू हैव टू टिक, है कि नहीं। या उसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, ऐसे 4 ऑप्शन में दे देगा, या सोविंग सीजन, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं इसमें, है कि नहीं, बट यू शुड कीप इन माइंड। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गैंगेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, पंजाब प्लेन है, ठीक है। तो इस वजह से इन सारे एरिया में एलुवियल सॉइल है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल वी हैव गुड फर्टिलिटी, दे सपोर्ट खरीफ क्रॉप, ठीक है, एंड इट हैज गिवन हाई यील्डिंग, ठीक है। यहाँ में HYV वेराइटी भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स का नेटवर्क है कि नहीं,
तो इसकी वजह से क्या है, हम लोग का इरिगेशन पॉसिबल है, राइट, एंड इट हैज़ वेरियस अदर फैसिलिटीज। क्योंकि प्लेन है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी बेटर है, यहाँ पे बहुत जल्दी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाई ट्रक, बाई अदर मीन्स, बाई रेलवे, है ना। तो ये सारी बातें हैं। हियर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग क्रॉप्स, मानसून भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पे, ठीक है। वी रिसीव मानसून वेरी अर्ली, ठीक है, एंड इन लार्ज एरिया, सो इरिगेशन बिकम्स मोर सक्सेसफुल। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब एंड हरियाणा, इट ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी, है कि नहीं। इससे क्या हुआ, देयर वाज शार्प इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड वी हैड रिसीव्ड अ शार्प इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन, अंडरस्टूड। तो ये सब मॉडर्न फार्मिंग की वजह से, क्लियर। सो अब दूसरी बात करते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। ये मानसून जब ऑनसेट होने लगता है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून जो है ऑनसेट होने लगता है, ठीक है, जब मानसून आने लगता है, जब बारिश शुरू होने लगती है, उसी टाइम हम लोग खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ऑनसेट ऑफ मानसून हमारा कब आता है, मई, जून के बाद, ठीक है ना। जून के बाद प्रोबेबिलिटी बन जाती है मानसून आने की, जून जुलाई, है कि नहीं। तो यहाँ हमारा जो खरीफ क्रॉप है, इसका जो है सोविंग सीजन क्या हुआ, ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। यानी कि अक्सर हम लोग कब बोलते हैं इसको, जुलाई, है ना, जून जुलाई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सोन इन जून जुलाई, है ना, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। बिकॉज देयर इज हैवी रेनफॉल एंड द मेन क्रॉप आर पैडी, इसका मेन क्रॉप है ज्वार, बाजरा, मैज, वही राइस, पैडी से ही राइस बनता है, ठीक है। पैडी को जब कुटाया जाता है तब राइस बनता है, पता है ना सबको, तो वही सारी बात। सो इसमें बहुत सारे जो है अरहर वगैरह भी होता है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग देयर, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव गॉट वन मोर क्रॉप दैट इज नोन एज ज़ैद क्रॉप, ठीक है। और इसका लोकेशन आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल, यूपी, जहाँ पे फ्रीक्वेंट जो है रेनफॉल होता है, ठीक है। कोंकण एरिया में भी बहुत अच्छा राइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास पैडी जो है सबसे बेस्ट होता है पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। देहरादून में भी पैडी ग्रो, ठीक है, यस। तो इस तरीके से लास्ट में ज़ैद क्रॉप, लास्ट इसको खत्म करते हैं, ज़ैद क्रॉप, ठीक है। ये आपका क्या है, रबी एंड खरीफ के बीच में, बिटवीन रबी एंड खरीफ, है ना, हाँ, गर्मी के महीने में जब बारिश नहीं आती है, इससे थोड़ा पहले, एंड दे आर ग्रोन जनरली ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, नदी के किनारे बहुत होता है, जैसे वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, शुगर केन, ठीक है, etc. ठीक है, they are ज़ैद crops. Clear? So tomorrow we will talk about major crops one by one. ठीक है, and